सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर ऑलरेडी मेरी वीडियोस देखते हैं तो थैंक यू सो वेरी मच। ऑलराइट, सो गाइस, दिस इज गोइंग टू बी अनदर मेकअप वीडियो, बट दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी 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 सिंपल मेकअप वीडियो। सिंपल इन मेनी वेज। पहला कि मैं बहुत ही सिंपल लुक क्रिएट करने वाली हूँ, जिसको आप एक्चुअली नो मेकअप लुक तो मैं नहीं कहूंगी, उससे मतलब लगेगा कि आपने मेकअप किया है, बट इट्स गोना बी अ वेरी सटल मेकअप लुक, ठीक है। 2, आई हैव ट्राइड टू यूज एज लेस प्रोडक्ट्स एज पॉसिबल। नंबर 3, आई हैव ट्राइड टू क्रिएट दिस किट अंडर ₹2500, मतलब इट्स अराउंड 2500 डिपेंडिंग ऑन के नायका से अगर आप खरीद रहे हो, क्योंकि मैं सब कुछ नायका से खरीदती हूँ। तो अगर आप नायका से खरीद रहे हो उस वक्त पे कोई चीज फॉर एग्जांपल 120 की है या 150 की है, क्योंकि देयर इज ऑलवेज थोड़ा बहुत डिफरेंस अप एंड डाउन चलता रहता है नायका पे, 20-30 रुपीज इधर उधर। सो या लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड स्टार्ट क्रिएटिंग अ वेरी सटल एंड नेचुरल लुक। ओके, तो सबसे पहले स्किन केयर करना बहुत जरूरी है। स्किन केयर मैंने इस किट में काउंट नहीं किया है, क्योंकि आप स्किन केयर अपना जो भी यूज करते हो आप वो कर सकते हो। अगर आपको मेरा ये यूज करना है जो मैं हमेशा एक पेयर यूज करती हूँ न्यूट्रीडर्म और डर्मावाइव का, तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। So I have washed my face as always with Dermavive Hydra Cleanser. This is a beautiful cleanser, very soft on your skin. Wash my face with this and then I will be moisturizing my face, which is very very important and crucial step. If you want your makeup to set nicely on your face, then you have to moisturize your face. Doesn't matter if your skin is oily, dry, medium, whatever it is, just moisturize. Okay, so I will be using this Nutriderm moisturizing lotion with vitamin E. This is my staple, ये मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ। So I'm going to be taking generous amount. I don't know why my face is feeling dry. Maybe because I have been doing a lot of भाग दौड़। हाँ, actually पिछले 2-3 दिनों से बहुत भाग दौड़ हुई है लाइफ में, तो इसलिए शायद, and I have not been able to take care of my skin nicely. So yeah, that is why I am using a generous amount of this moisturizing lotion and nicely massaging it all over my face and also my neck. Now my face is nicely moisturized. Now we will be getting into all this makeup. Okay, now I will be using this primer. It is from the brand Inside. It's a 3-in-1 primer. It primes, protects and also moisturizes. तो वैसे हमने अपना फेस मॉइस्चराइज कर लिया है, बट there's no harm अगर हमें कोई ऐसा प्राइमर मिल जाए जो अगेन थोड़ा सा मॉइस्चर आपके स्किन को प्रोवाइड कर दे। So I've taken very little quantity and मैंने इसको अपने टी जोन में लगाया है और बाकी जगहों पे मैंने इसको इस तरीके से स्प्रेड कर दिया है। That's it. Now we have a very clean and smooth slate to work on. Okay, so for this look I have avoided foundation. No, we don't really need foundation all the time. If it is a very subtle and natural makeup look, you can avoid foundation definitely until and unless आपको लगता है कि नहीं फाउंडेशन के बिना मेरा काम ही नहीं चलेगा। मेरे फेस पे जितने भी थोड़े बहुत मार्क्स हैं, एक्ने मार्क्स है, पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल्स हैं, मेरी लिड्स थोड़ी सी पिगमेंटेड हैं, उन सब के लिए I am going to be using these 2 concealers. One concealer is for all the problems that I just mentioned and another one is going to be for the highlighting. Now I have been loving these Swiss Beauty के concealers. I know आप लोग शायद पिछले 2-3 वीडियोस से अब मुझे यही देख रहे हो, बट जब मैंने Swiss Beauty की एक डेडिकेटेड वीडियो की थी, मैंने इनको इतना पसंद किया था उस वीडियो में, मैंने आप लोगों को बोला था that you will be seeing me use these concealers a lot and yeah, you are seeing me using these a lot. So anyway, so I am using first of all ये Swiss Beauty का concealer in the shade 06, which is quite close to my skin shade, and I am trying to conceal and cover all the marks, pigmentation, dark circles and everything on my face with the help of this one. So जहाँ पे भी कोई red marks हैं, acne marks हैं या फिर acne हैं, उन सबको मैं इससे कवर करूँगी। एंड मेक श्योर कि आप बहुत कम प्रोडक्ट लो, क्योंकि ये नेचुरल और सटल मेकअप लुक हम क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए सिर्फ यही नहीं है कि हमें कम प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने हैं, उसके लिए हमें ये भी ध्यान रखना है जो भी प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी भी हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल ना करें, ठीक है। नाउ आई विल बी टेकिंग दिस डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर एंड आई विल बी ब्लेंडिंग ऑल ऑफ दिस कंसीलर। Now I'll just make sure कि जहां पे मैंने इस कंसीलर को लगाया था मैं उसी जगह पे डैप कर दूं, ना कि फैला के अपने पूरे फेस पे लगा दूं। And this is it
guys, now we will be using another concealer from again Swiss Beauty. This is in the shade 03 which is 2-3 shades lighter than my skin tone. और इसको मैं लगाऊंगी अपने आईज के नीचे, अपने नोज के ब्रिज पे, क्यूपिड बो, चिन और फोरहेड के ऊपर. एंड ऑल्सो क्योंकि हमने फाउंडेशन नहीं लगाया तो मैं बहुत हल्का सा यहाँ पे भी इसको लगा रही हूँ. एंड नाउ अगेन वील बी ब्लेंडिंग दिस कंसीलर ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ द सेम ब्यूटी ब्लेंडर. इस लुक को आप आराम से वेस्टर्न अगर आप कपड़े पहन रहे हो उसके साथ भी स्पॉट कर सकते हो, और अगर आप इंडियन भी पहन रहे हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप इंडियन कपड़े पहन रहे हो या फिर फेस्टिवल्स में इस मेकअप को कर रहे हो तो कोई ज़रूरी है कि आपको कोई तड़कता भड़कता इंडियन फेस्टिवल के हिसाब से ही मेकअप करना है. सम पीपल जस्ट डोंट लाइक going over the board with the makeup and putting a lot of colors on their face. So that's why this look is for all of them who like to just keep it very very natural and subtle. Yeah, our base is ready, guys. That is it that you have to do. Just make sure it's blended very very nicely. Now to pack all of this I will be using my really favorite Maybelline Fit Me Compact. This is such an affordable, बहुत ही सस्ता product है, but it works wonders on my skin at least. So for this I will be using a fluffy brush. This, take it on my brush. First of all get done with my eyes के नीचे वाला एरिया जहाँ हमने कंसीलर लगाया. सबसे पहले हम उसको पैक करेंगे. Why? Because अगर मैं इसको सबसे एंड में करूंगी सेट तो हो सकता है तब तक आंखों के नीचे क्रीजेस पड़ जाए, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा क्रीजेस पड़ने के चांसेस होते हैं. नॉट हियर, नॉट हियर, नॉट हियर. सो या बेसिकली setting my full face with Maybelline Fit Me Compact. एंड यहाँ पे मैंने कोई कंसीलर वगैरह कुछ नहीं लगाया था, सो इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ कॉम्पैक्ट की मदद से हल्का सा इसको लगा रही हूँ यहाँ पे. एंड दैट इज इट गाइज, आवर बेस इज डन. सो नाउ आई एम यूजिंग दिस पैलेट फ्रॉम शुगर कॉस्मेटिक्स. इसको यूज करने का एक्चुअली मेन पर्पस यही था क्योंकि इसके अंदर ब्रॉन्जर, कॉन्टोर भी है, हाईलाइटर भी है और ब्लश भी है. आई कुड हैव यूज्ड द स्विस ब्यूटी वाला पैलेट जो मैं अभी लास्ट 2 वीडियो से यूज कर रही थी, बट मैंने ऑनेस्टली सिर्फ इसीलिए यूज नहीं किया उसको क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यार बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है. सो अगर आप लोग वो फेस पैलेट यूज कर सकते हो. इफ यू डोंट नो व्हाट पैलेट आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट मीन्स यू हैव नॉट वॉच्ड द स्विस ब्यूटी का फुल फेस मेकअप ट्यूटोरियल. प्लीज गो एंड वॉच दैट. उसके अंदर मैंने एक फेस पैलेट का जिक्र किया है जिसको यूज भी किया है, एंड वो गॉड आई बिकेम अ फैन ऑफ दैट पैलेट. तो आप वो भी यूज कर सकते हो, बट अगर आपको ये लेनी है तो आप ये भी ले सकते हो. दिस इज ऑल्सो गुड ऑप्शन, नो डाउट अबाउट दैट. सो फॉर कॉन्टोरिंग माई फेस, इसको थोड़ा सा शेप देने के लिए I am using थोड़ा सा ये छोटा वाला fluffy brush and removing the excess, and यहाँ पे मैं इसको हल्का सा थोड़ा सा just giving color, depth and structure to my face. Again I'm going very very natural with this. Not I'm just trying कि जैसे अभी ये आपको काफी सारा दिख रहा है यहाँ पे, इसको भी हम blend कर देंगे because it's a natural subtle look. So I just want everything to be natural and कम दिखे बेसिकली फेस पे आपके. सो आई एम टेकिंग अ क्लीन ब्रश नाउ. उसकी मदद से इसको ब्लेंड भी कर रही हूँ और थोड़ा सा प्रोडक्ट जो है वो कम भी हो जाएगा. गोइंग अगेन विद माई छोटे वाला ब्रश, टेकिंग कॉन्टोर शेड एंड कॉन्टोरिंग माई नोज विद इट. एंड नाउ इफ यू फील कि थोड़ा सा ज्यादा लग गया है तो अगेन यू विल गो टू द फ्लफी ब्रश, जो क्लीन फ्लफी ब्रश है. जस्ट सारे फेस पे इसको घुमा दो, एंड कुछ भी अगर आपको लगता है प्रोडक्ट ज्यादा लग गया आपके फेस पे तो वो इसकी मदद से उड़ जाएगा और कम हो जाएगा, ठीक है. नाउ दिस इज डन. सो अब हम थोड़ा सा ब्लश ऐड करेंगे अपने फेस पे. दिस इज अ वेरी वेरी पिगमेंटेड ब्लश इसके अंदर. तो जस्ट मेक श्योर कि अगर ये पैलेट आप यूज कर रहे हो ना तो बहुत कम इस्तेमाल करो. दैट्स इट. बस इतना ही कलर मैं देने वाली हूँ इस वक्त इस लुक के लिए अपने फेस पे. नाउ व्हाट आई एम डूइंग, क्योंकि हम इस लुक के लिए आई शेडो यूज नहीं कर रहे हैं और एक बहुत ही नेचुरल लुक रख रहे हैं, तो इसलिए आई विल बी टेकिंग दिस जिससे हमने कॉन्टोर किया था. ये दिस इज परफेक्ट फॉर अगर आपको लिड्स पे. आई एक्चुअली जस्ट शो यू. मैं हल्का सा ये ले रही हूँ, डस्ट ऑफ कर रही हूँ, एंड दैट इज इट गाइस. द आईज आर डन. That's all that we're gonna do. हम इसमें थोड़ा सा नेचुरल सा फ्लश दे रहे हैं बेसिकली आईज पे, ताकि एकदम डल नहीं लगे बट एट द सेम टाइम ऐसा भी ना लगे कि आई शेडो लगाया है.
just a very very natural and subtle color to the lids, that's all. Now from the same palette I'm going to be using the highlighter and फिर से वापस से काफी कम लूंगी and okay, the base is done, everything is done basically, contour, blush, highlight, everything is done. अब हम जाएंगे eyebrows पे और mascara and all that, but before that I will pack my face with a makeup fixer, and the makeup fixer that I'm going to use is again from Swiss Beauty. ये वापस से जिंदा हो गया मेरी मेकअप किट में जब से मैंने वो Swiss Beauty वाली डेडिकेटेड वीडियो की है. एंड वैसे भी अगर मुझे कोई भी सस्ती वाली मेकअप किट तैयार करनी होती तो दिस इज द वन दैट आई यूज. आई एम श्योर जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है, दिस इज द वन दैट आई यूज इन ऑल माई अफोर्डेबल मेकअप किट्स. Now for my mascara, I am gonna show you a very new product जो आप लोगों ने मेरे चैनल पे एटलीस्ट YouTube पे तो नहीं देखा है. Instagram पे I've used this in one of my makeup looks. I really liked it. I remember मैंने पर्सनल लाइफ में काफी बार यूज कर लिया है, बट इसको मैंने वीडियोस में कभी यूज नहीं किया है. आज मुझे दिखा ये, मैंने कहा I have to introduce this product to you. छोटा सा मिनी साइज का ये मस्कारा है. इट्स रियली गुड मस्कारा, बहुत सुंदर है. इट लेंथन्स योर आई लैशेज, थोड़ा सा थिक भी कर देती हैं. सो या आई थिंक दिस इज अ रियली गुड ऑप्शन इफ यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू मस्कारा. इट्स फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड सेरी कॉस्मेटिक्स. इट्स नॉट अ वेरी ओल्ड ब्रांड, इट्स relatively new, but I think it's a really good one. Okay, so now we're gonna move on to eyebrows, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये नायका की ब्राउ पेंसिल. और इसमें स्पूली भी आती है एक साइड पे और एक साइड पे प्रोडक्ट है, द मेन प्रोडक्ट, द आईब्रो फिल करने के लिए प्रोडक्ट. सो स्पूली की मदद से पहले हम जिसके ना कोम्ब ऑल द हेयर. कोम्ब करने से क्या होता है, थोड़ी सी आसानी हो जाती है आईब्रोज को फिल करने के लिए, और जो आईब्रो के बाल होते हैं वो रास्ते में नहीं आते हैं. ठीक है, सो या जस्ट गोना फिल बहुत ही नेचुरली, बहुत ही कम यूज करके, बहुत ही सॉफ्ट स्ट्रोक्स देके आई विल जस्ट फिल जहां जहां पे मुझे लगता है मेरे आईब्रोज में गैप है. ओके, दिस इज इट. अब जब मैंने फिल कर लिया, अगेन आई विल गो बैक टू द स्पूली और हल्का सा इनको कोम करूंगी, सो दैट कोई भी अगर हार्श ऐसी डार्क लाइंस मुझसे लग गई हैं तो वो ऐसे ब्रश तो हो ही जाएंगे बाल, साथ साथ वो भी सॉफ्ट हो जाएंगी लाइंस, एंड दैट्स इट. आई नो आईब्रोज बहुत मेड अप नहीं लग रही हैं क्योंकि बहुत ज्यादा फिल नहीं किया है, बहुत अच्छे से शेप नहीं बनाई है. वो इसीलिए नहीं बनाई है ताकि लुक थोड़ी और नेचुरल है. और स्पेशली अगर आप बाकी फेस पे नेचुरल लुक कर रहे हो और आईब्रोज को बहुत ज्यादा डार्क कर लोगे, प्रॉपर बना लोगे ना, तो एकदम से आईब्रोज ही नजर आएंगे आपके पूरे फेस पे. ठीक है, सो या दैट्स इट. नाउ द लास्ट प्रोडक्ट दैट आई एम गोना यूज इज द लिपस्टिक. फॉर द लिपस्टिक आई हैव दिस ऑप्शन फॉर यू गाइस. इट्स फ्रॉम द ब्रांड नायका. इट्स अ मिनी साइज प्रोडक्ट. तो मिनी साइज प्रोडक्ट्स ना यार बड़े अच्छे रहते हैं उन लोगों के लिए जो लोग बहुत कम मेकअप करते हैं, कभी कभी करते हैं, बहुत ओकेजनली करते हैं. उनके लिए क्या होता है, अगर वो बड़े साइज का प्रोडक्ट ले लेंगे, वो पड़ा पड़ा इस्तेमाल नहीं होगा, खराब हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, तो वहां पे ऐसे मिनी प्रोडक्ट्स बहुत काम आते हैं. दैट्स व्हाई आई हैव ट्राइड टू शो यू मिनी प्रोडक्ट्स इन दिस. सारे नहीं, पर जितने भी मैं कर सकी उतने. जैसे कि आपने मस्कारा देखा, मैंने वो मिनी प्रोडक्ट यूज किया. देन लिप फॉर लिपस्टिक ऑल्सो आई एम यूजिंग दिस मिनी प्रोडक्ट. नाउ सिंस इट्स अ नेचुरल लुक, अगेन आई विल नॉट, मतलब ऐसा पूरा लिपस्टिक नहीं लगाऊंगी मैं फेस पे. जस्ट सी व्हाट आई एम डूइंग. मैंने अपने लोअर लिप पे लगाया और आपस में दोनों को स्मच किया, तो कलर ऊपर भी चला गया. अब उसके बाद कहीं पे अगर मुझे लगा थोड़ा सा इसको और सेट करना है, तो मैंने अपनी उंगली की मदद से इसको ऐसे सेट कर दिया, एंड दैट्स इट. सो यू सी, बहुत नेचुरल लुक आ रही है और ऐसे लग नहीं रहा है कि बहुत ज्यादा मेकअप किया है. आई नो कुछ ऐसे लड़के वड़के आके नीचे कमेंट्स में जरूर लिखेंगे कि इतना सारा मेकअप डाल लिया, ये कहाँ से नो मेकअप है. ओके गाइस, दिस इज द मेकअप लुक दैट आई क्रिएटेड विद least amount of products and I really hope that you guys enjoyed this. But now before ending the video, मेरे दिमाग में ना एक आइडिया आया है. वो ये है कि क्योंकि मैंने मेंशन किया है कि ये लुक जो है इंडियन कपड़ों के साथ आराम से जाएगी, तो अगर आपको विश्वास नहीं होता है, मैं आपको अभी इंडियन कपड़े पहन के दिखाऊंगी एंड यू विल एक्चुअली गेट टू नो कि या दिस इज अ गुड इनफ मेकअप लुक फॉर योर इंडियन फेस्टिविटीज ऑल्सो इफ यू आर इनटू नेचुरल मेकअप. सो या गाइस, डिड यू जस्ट सी दिस? मैंने कुछ ऐड नहीं किया है, मेकअप कुछ भी नहीं, एंड इट्स लुकिंग गुड एज इट इज.
जस्ट इंडियन कपड़े पहन लो एंड द नेचुरल सटल लुक, जिसको लगता है ना कि इंडियन कपड़ों के साथ थोड़ा तड़कता भड़कता मेकअप ही अच्छा लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स लुकिंग सो नाइस। इनफैक्ट मुझे वो वेस्टर्न से ज्यादा ये लुक अच्छी लग रही है एंड इट्स परफेक्ट फॉर योर ऑल इंडियन फेस्टिवल्स, ठीक है। तो yeah, this is it. I really hope that you guys enjoyed seeing both the versions of this makeup look. If you enjoyed this, please let me know in the comments. सारे प्रोडक्ट्स के जो लिंक हैं, डायरेक्ट लिंक सारे प्रोडक्ट्स के मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। विदाउट एनी कंफ्यूजन आप लोग उन लिंक्स पे जा सकते हो और अपने लिए प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हो बाकी आने वाले सारे फेस्टिवल्स के लिए। एंड या अगर आपके पास कुछ और आइडियाज हैं तो डेफिनेटली लेट मी नो दैट ऑल्सो इन द कॉमेंट्स। I will definitely try to create a look around that idea, and I will see you guys in my next video. Till then, bye bye, take care guys.